Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Zia. I welcome all of you from MMK Hub platform for today's online lecture. Hope you guys are doing well. We highly appreciate your interest and dedication for online lectures organized by MMK Hub. It's really encouraging for us. If you missed any lecture, you can visit our website for recorded lectures and many more study materials. Today's lecture is third lecture of the series of thyroid pathology, and today's topic is thyroiditis. What is thyroiditis? As we discussed in the last lecture, whenever there is the term itis at the end of a terminology, it means inflammatory process. So thyroiditis means inflammation of the thyroid gland. It includes a group of disorders characterized by some form of thyroid inflammation and thyroid dysfunction. जहाँ तक टाइप्स की बात है तो मेन टाइप्स ऑफ थायराइडाइटिस में क्या आता है? ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस, granulomatous thyroiditis, fibrosing thyroiditis, and infective thyroiditis. Most common form of thyroiditis, Hashimoto's thyroiditis, belong to the autoimmune group, and it is a chronic lymphocytic thyroiditis. While granulomatous type include Dieter Wehn's thyroiditis, and fibrosing type include Riedel's thyroiditis. And infective thyroiditis can be acute or chronic. Acute thyroiditis is of the bacterial, viral, or subacute origin, and chronic thyroiditis is the tuberculous or syphilitic in origin. We will discuss briefly these types of thyroiditis. First of all, Hashimoto's thyroiditis, which is a chronic lymphocytic thyroiditis. It is the most common cause of hypothyroidism in areas with sufficient iodine. It is characterized by gradual thyroid failure because of the autoimmune destruction of the gland. It is common between the age group of 45 and 65 years. Pathogenesis में क्या होता है? It is an autoimmune disease, and there is a progressive destruction of the thyroid epithelial cells, thyrocytes, which are gradually replaced by the mononuclear cell infiltration and fibrosis. सेकेंड इसमें क्या पैथोजेनिक प्रोसेस होता है कि सेंसिटाइजेशन हो जाती है CD4 T helper cells की to the thyroid antigen, and it is initiating event in the autoimmune thyroiditis. There are three main mechanisms जिनकी वजह से thyrocyte means thyroid follicular cell, thyroid cells. Three main mechanisms हैं जिसकी वजह से थायरोसाइट्स की डिस्ट्रक्शन या डेथ होती है, और मेन प्रोसेस जो इन्वॉल्व होता है दैट इज द टी सेल सेंसिटाइजेशन. वो तीन प्रोसेस कौन से हैं, इन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं. साइटोकाइन फर्स्ट इज द साइटोकाइन मेडिएटेड थायरोसाइट इंजरी which involve the reaction of the CD4 T cells to the thyroid antigen. और उसकी वजह से साइटोकाइन प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो साइटोकाइन्स होते हैं ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं और मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं, और इस इन्फ्लेमेशन और मैक्रोफेज की एक्टिवेशन की वजह से थायराइड की सेल्स की इंजरी होती है. दूसरी मैकेनिज्म में क्या है कि टी सेल्स मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी होती है, जिसमें CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं जो कि थायरोसाइट्स के ऊपर होता है, और इस एंटीजन रिकॉग्निशन की वजह से उन सेल्स की डेथ होती है. थर्ड मैकेनिज्म जो है उसमें एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी होती है, जिसमें एंटीबॉडीज, एंटी थायराइड एंटीबॉडीज जो हैं वो बाइंड करती हैं एंटीजन के साथ, और वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी इनिशिएट होती है बाय द एंटी सेल्स जो कि इसको डिस्ट्रॉय करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में हम डायग्रामेटिकली इन चीजों को मजीद समझने की कोशिश करेंगे. जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में सजेस्ट किया जाता है लिंकेज बिटवीन द HLA-DR3 एंड HLA-DR5 एलीलीज.
जबकि ये एसोसिएशन वीक है, बट देयर इट इज सजेस्टेड दैट इट हैज एन एसोसिएशन with the human leukocyte antigen DR3 and DR5. This is the diagram which is summarizing what we discussed in the previous slide. कि थायराइड एपिथेलियम और थायरोसाइट्स जो होते हैं उनके टी सेल सेंसिटाइजेशन हो जाती है टू द थायराइड एंटीजन, और वो फिर सारा प्रोसेस मेडिएट होता है वाया द हेल्पर टी सेल्स, जिसमें के तीन मैकेनिज्म हमने डिस्कस किए हैं। एक वो है जो CD4 सेल मेडिएटेड है, जिसमें के जिसमें से साइटोकाइन बनते हैं IFN गैमा, और वो मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है और थायरोसाइट की इंजरी काज करता है। दूसरे मैकेनिज्म में CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल इन्वॉल्व होते हैं, और वो सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी की वजह से सेल्स को डैमेज करता है। जबकि तीसरे सेल में प्लाज्मा सेल्स इन्वॉल्व होते हैं विच इज रिलेटेड टू द एंटीबॉडीज फॉर्मेशन अगेंस्ट द एंटीजन थायराइड एंटीजेंस, और वो जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है उसकी बेस पे सेल डैमेज होता है। तो ये तीन मेन मैकेनिज्म्स हैं जो कि ऑटो इम्यून हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस में इन्वॉल्व होते हैं। एंड रिमेंबर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थायरॉइडाइटिस इज हाशिमोटोस थायरॉइडाइटिस। मॉर्फोलॉजिकली अगर हम क्रॉस एग्जामिनेशन पे देखेंगे तो थायराइड जो होगा उसकी इन्वॉल्वमेंट डिफ्यूज होगी और सिमेट्रिकली थायराइड इनलार्जमेंट होगी। और अगर हम उसकी कट सरफेस को देखेंगे पोस्ट जो स्पेसिमेन हम लेंगे पोस्ट ऑपरेटिव, उसमें अगर उसकी सरफेस को कट किया जाएगा तो इट लुक्स लाइक अ लिम्फ नोड। ये फर्म होगा और ग्रे पेल और ग्रे टैन इसकी कलर होगा, जो कि लिम्फ नोड की तरह इसकी अपीयरेंस होगी। और जब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में देखा जाएगा तो देयर इज द वाइड स्प्रेड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द पैरेन्काइमा बाय mononuclear cells containing small lymphocytes, plasma cells, and well-developed germinal centers. Second फीचर इसका क्या होगा कि थायराइड फॉलिकल्स जो होंगे वो एट्रोफिक हो जाएंगे। और थर्ड, ये लेस कॉमनली थायराइड कैन बी स्मॉल और एट्रोफिक एज अ रिजल्ट ऑफ मोर एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस। और ये स्टेट हाशिमोटोस थायरॉइडाइटिस का फाइब्रोसिन वेरिएंट है, कि जिसमें अगर लॉन्ग टर्म ये प्रोसेस चलता है तो थायराइड की श्रिंकेज हो जाएगी। As far as lab investigation are concerned, we can advise patient to have a thyroid function test. जिसमें T4 और 3 लेवल्स जो है वो डिक्रीज होंगे और TSH लेवल एज अ कंपनसेशन इंक्रीज होगा। अगर थायराइड ऑटो एंटीबॉडीज हम करवाएंगे इट विल बी कंफर्मेटरी ऑफ द हाशिमोटोस थायरॉइडाइटिस। और इसके अलावा हम इसमें फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी भी कर सकते हैं। और इसका जो डायग्नोसिस होता है वो बेसिकली जो एक्सीजनल बायोप्सी हम इसकी करते हैं उसकी बेस पे जो हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स आते हैं हमारे पास उसकी बेस पे हम इसको जो कंफर्म डायग्नोसिस है हम इसका बनाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स, male and female ratio involvement in 1:10. It presents mostly as a painless anterior neck mass. Hypothyroidism mostly 20% of cases, and some of the cases almost 5% present with the hyperthyroidism. The enlargement of the thyroid is painless. ठीक है। और सेकंड इसमें होगा कि बाज़ औक़ात पेशेंट जो है इनिशियल स्टेजेस में अगर प्रेजेंट रहेगा तो वो ट्रांजिएंट थायरोटॉक्सिकोसिस के साथ प्रेजेंट रहेगा, विच इज ड्यू टू द डिस्ट्रप्शन ऑफ द थायराइड फॉलिकल्स, और उनके अंदर जो स्टोर्ड थायराइड हार्मोन्स होंगे वो सर्कुलेशन में रिलीज हो जाएंगे। और इस कंडीशन को हम लेबल करते हैं एज अ हैशी टॉक्सिकोसिस। तो बेसिकली इसमें फॉर्मेशन इंक्रीज नहीं हुई, बल्कि जो स्टोर्ड थायराइड हार्मोन्स थे उनका जो रिलीज हुआ इनटू द सर्कुलेशन, इट विल लीड टू अ ट्रांजिएंट इंक्रीज इन द levels of the thyroid hormone in the circulation. As far as treatment is concerned, as we discussed, that most of cases presents with hypothyroidism, so we will give them thyroxine replacement. And if there is suspicion of malignancy or there are pressure symptoms due to the size or cosmetically it is unacceptable for the patient, then we can offer the patient surgical treatment. जितने भी ऑटो इम्यून प्रोसेसेस होते हैं दीज आर यूजुअली सेल्फ लिमिटेड, तो इनमें ट्रीटमेंट हमने कंजर्वेटिव रखनी है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हमने इन 3 इंडिकेशंस की वजह से जाना है, ये जो हमने मेंशन की है। नेक्स्ट टाइप इज द सब एक्यूट
granulomatous thyroiditis, या जिसे हम detervens thyroiditis कहते हैं. It is much less common incident wise as compared to the Hashimoto's disease. Most common ages involved are the 30 to 50 years of age, and more common in the incidence is more common in the females. Pathogenesis की अगर हम बात करें, it is believed to main cause is viral infection or due to a post-viral inflammatory process. जैसे कि हमने कहा कि Hashimoto's में main cause was the autoimmune process. इसमें जो main cause है वो viral infection है, ये post-viral जो inflammatory process हुए हैं उसकी वजह से ये detervens thyroiditis होगा. Majority of patients have a history of upper respiratory infection just before the onset of the thyroiditis. Morphologically हम देखेंगे तो ग्रास एग्जामिनेशन में ग्लैंड इज फर्म, यूनिलैटरल और बाइलैटरली enlarged. और अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो देयर इज द डिसरप्शन ऑफ द थायराइड फॉलिकल्स with extravasation of colloid leading to the neutrophil infiltration, which is replaced over the time by the lymphocyte, plasma cells and macrophages. Clinical features की बात अगर की जाए तो it is characterized by the pain in the neck, particularly with the swelling. Patient has a fever, malaise and variable enlargement of the thyroid. तो अगर आप देखें तो वो वायरल इलनेस में जैसे कि फीचर्स होते हैं कि पेन हो रहा, वायरल इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में फीवर हो रहा, मलेज है और स्वेलिंग है, तो वो सारे फीचर्स आपको थायराइड ग्लैंड में नजर आएंगे. और पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट रहेगा विद द हाइपरथायराइडिज्म. जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इज जेनेटिकली एसोसिएटेड है ये HLA-B35 के साथ. जैसे हमने बात की फीमेल में इंसिडेंस ज्यादा कॉमन है और इसकी स्टेजेस होती हैं. अगर पेशेंट इनिशियली प्रेजेंट करेगा तो देयर विल बी अ हाइपरथायराइड स्टेट. तो लेटर ऑन वो पेशेंट जाएगा यूथायराइड में और देन अगेन इनटू द हाइपोथायराइड एंड देन इनटू द यूथायराइड स्टेट. हाइपरथायराइड में क्या ड्यू टू द रिलीज ऑफ द प्रीफॉर्म्ड हार्मोन्स, फिर वो यूथायराइड हो जाएगा और जब फिर थायराइड सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो पेशेंट प्रेजेंट विद द अगर उस फेज में पेशेंट आपके पास रिपोर्ट करता है तो ही विल बी इन अ हाइपोथायराइड स्टेट. और अल्टीमेटली वो क्योंकि एक वायरल इलनेस है, जैसे वो सबसाइड होगी वो तो वो पेशेंट दोबारा बायोकेमिकली यूथायराइड की तरफ आएगा. टिपिकली सेल्फ लिमिटेड डिजीज है और मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो होते हैं वो 6 to 8 वीक्स में रिकवर करके दोबारा यूथायराइड स्टेट में आ जाते हैं. ठीक है जी. इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें वो ये थायराइड फंक्शन टेस्ट हम एडवाइस करेंगे. इसके अलावा ब्लड कंप्लीट पिक्चर कर सकते हैं जिसमें हमें ल्यूकोसाइट काउंट मिलेगा, ESR एलिवेटेड मिलेगा. और अगर हम रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक स्कैन करवाएंगे तो वो इसको डिस्टिंग्विश कर सकता है फ्रॉम द ग्रेव्स डिजीज. ठीक है, जो हमने प्रीवियस उसमें डिस्कस की थी, तो उससे हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक स्कैन. ट्रीटमेंट इसमें सिम्टोमेटिक दी जाती है बिकॉज इट इज अ सेल्फ लिमिटेड कंडीशन. तो पेशेंट को पेन है, फीवर है, डिस्कम्फर्ट है तो उसके लिए नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाएगी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दिए जाएंगे टू सप्रेस द इंफ्लेमेटरी प्रोसेस. और अगर बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव केसेस हैं और तो उसमें हम पेशेंट की सर्जिकल ट्रीटमेंट पे जा सकते हैं, which is usually not needed. Other type is the subacute lymphocytic thyroiditis. ये मेनली साइलेंट होता है और पेनलेस होता है. मोस्टली ये प्रेजेंट करता है आफ्टर प्रेगनेंसी और इसको हम पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस भी कहते हैं. कॉमनली इफेक्ट करता है मिडिल एज वुमेन को. पैथोजेनेसिस में क्या है कि डिजीज मोस्ट लाइकली ऑटोइम्यून etiology है बिकॉज सर्कुलेटिंग एंटी थायराइड एंटीबॉडीज आर फाउंड इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस. ठीक है, इट इज जस्ट लाइक द Hashimoto's thyroiditis but it is subacute in incidence. तो इसलिए इसे सेपरेट क्लासिफाई किया गया है. Morphologically, mild symmetric enlargement of the thyroid gland and there is the lymphocytic infiltration on microscopic examination. Clinically, patient presented as a painless neck mass के साथ hyperthyroidism होगा due to the thyroid tissue damage और वही जो preformed hormones हैं उनकी रिलीज की वजह से, followed by the return to a euthyroid state within a few months. In a minority of affected individuals, the condition eventually progressed to hypothyroidism.
तो इस सब एक्यूट लिम्फोसिटिक थायराइडिस को आप हाशिमोटोस थायराइडिस के साथ रख के अगर इसको याद रखने की कोशिश करेंगे तो इजीली मेमोराइज होगा। तो बेसिकली अभी तक हमने जी एक ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस देखा जो कि हाशिमोटोस है या सब एक्यूट लिम्फोसिटिक थायराइडिस है, एंड द सेकंड टाइप इज द डिटरमिनेंट थायराइडिस व्हिच इज मेनली ऑफ द वायरल ओरिजिन। नेक्स्ट टाइप इज द रीडर्स थायराइडिस which is the invasive fibrous thyroiditis. It is also associated with the autoimmune process. Features में इसमें middle या old age में females में present करता है, mainly mostly females are involved. It is painless, hard neck, anterior neck mass, and usually causes the pressure symptoms. Diagnose हमने किस तरह करना है? It is diagnosed by the open thyroid biopsy because FNAC is inadequate in this case. And usually there is woody non-tender thyroid swelling which mimics carcinoma. Mimic का क्या मतलब है कि वो रिजेंबल करती है कार्सिनोमा में, और इसकी जो ओपन थायराइड बायोप्सी है वो इसी वजह से की जा सकती है कि हम एफएनएसी की बेस पे इसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि वेदर इट इज अ थायराइडाइटिस और इज अ कार्सिनोमा। तो उसके लिए हम इसकी ओपन थायराइड बायोप्सी करते हैं। ट्रीटमेंट इज सर्जरी विद द वेज रिसेक्शन ऑफ द एस्थमस, उससे हमें स्पेसिमेन भी मिल जाते हैं और उसके जो प्रेशर सिम्टम्स होंगे ट्रैकिया पे उससे भी रिलीफ मिल जाएगा। और कार्टिकोस्टेरॉइड्स हम देंगे ताकि ऑटोइम्यून प्रोसेस है उसकी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को सबसाइड करने के लिए। और इसके अलावा एंटी ईस्ट्रोजन और कार्टिकोस्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन भी दिया जाता है। तो ये इसके लिए हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। Last type which will discuss is the infective thyroiditis. Infective thyroiditis में mainly जो organisms involved होते हैं, these are the streptococci and anaerobes, and these two accounts for almost 70% of the cases. This infective thyroiditis is most common in children, child age group में होता है, and it is usually preceded by the upper respiratory tract infection or otitis media. अगर क्लिनिकल फीचर की हम बात करें तो इन्फेक्टिव थायराइडाइटिस में हमें किसी भी इन्फेक्टिव एटियोलॉजी में हमें जो फीचर्स मिलते हैं, पेन है, स्वेलिंग है, फीवर है और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, और इसके अलावा हमें रिकरेंट परसिस्टेंट पिलिफॉर्म साइनस फिस्टुला उसकी भी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकती है। ट्रीटमेंट और इन्फेक्टिव एटियोलॉजी है, बैक्टीरियल ओरिजिन की है, तो उसकी कवरेज के लिए हम एंटीबैक्टीरियल्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, और उसमें हमने इंट्रावीनस रूट से इसको एंटीबायोटिक देंगे। अगर वहां पे एक्सेस फॉर्मेशन हो जाती है, पस एक्यूमुलेशन हो जाती है, तो फिर हम उसकी पस को ड्रेन करेंगे, ड्रेनेज ऑफ द एक्सेस। सो दैट्स ऑल अबाउट द थायराइडाइटिस। तो जस्ट समराइज इन अ मिनट कि हाशिमोटोस थायराइडाइटिस है, रीडल्स थायराइडाइटिस, डिटरमिनेंट थायराइडाइटिस, इन्फेक्टिव थायराइडाइटिस। These are the main types of the thyroiditis. तो इनको हमने briefly discuss किया है। तो any question या query हो तो वो आप हमसे discuss कर सकते हैं। तो hopefully you understand what we have studied. तो next lecture will be the last lecture of the thyroid pathology, which is on the neoplasia. तो inshallah very soon we will arrange that lecture for you. So that's all for today. Any question? Thank you.